Hello, good morning, assalamu alaikum, and welcome to the Pavilion. This is A Sports and 10 Sports, and you're probably watching us on the ARY Zap app as well with our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And today is another great day. We have a special match coming out to you. आज एक अच्छा और बड़ा मैच है दोस्तों, और वो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा. आज न्यूजीलैंड बा मुकाबला श्रीलंका. ये मैच है सिडनी से, ये मैच है और ग्रुप 1 का मैच है. ये 27वां मैच है. ये सूरत हाल है. आइए जरा ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल है ग्रुप 1 के ऊपर इस वक्त. व्हाट इज द पॉइंट्स टेबल लाइक? दिस इज हाउ इट इज. न्यूजीलैंड सिटिंग राइट ऑन टॉप with 3 points but a great net run rate. England right behind them, but they have played 3 games with 3 points. Ireland ने भी 3 मैचेस खेले हैं, 3 पॉइंट्स हैं उनके पास. ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 मैचेस खेले, 3 पॉइंट्स हैं उनके पास. श्रीलंका के 2 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. अफगानिस्तान ने 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं. ये सूरत हाल है आज श्रीलंका के लिए. ये बड़ा मैच है. दिस शुड बी सुपर एक्साइटिंग. जस्ट इन केस यू डोंट नो व्हाट यू आर वाचिंग, दिस इज द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कवरेज ऑन A Sports and 10 Sports, and this is the Pavilion. With me in the Pavilion, I'm joined by some legends, some outstanding people who've served the game of cricket and Pakistan really well over their careers. It gives me great pleasure to introduce to you, I've got with me Mr. Dependable, Misbah ul Haq. Good morning, Misbah. Assalamu alaikum. The toe-crushing, batsman terrorizing, golf-loving, super cool guy, Waqar Younis. Good morning, Waqar. Good morning. Why you always bring golf in it? I don't understand that. Because apparently they say that your golf is also as good as your cricket, so that's why I keep bringing it. I'm sorry, I'm lying on TV. This is just not acceptable. I'm just kidding. But no, seriously. I mean, we all know how passionate you are about golf. Thank you. We know that you're willing to give up everything just to make sure that you're on the golf course, No, right? no, not that much, but good morning. Good morning. And with me, the Sultan himself, the greatest of all times, the legend, Wasim Akram. Good morning, Wasim. Good morning. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. I'm Sam. How is this morning for you, Wasim? Excellent, actually. How are you feeling today? I'm feeling much better. I was up early, did my walk, whatever I do every morning, and then came here for the show. Yep. All right. Exciting day today. Big game, like you said. Yes. न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका. वर्ल्ड कप्स के अंदर वसीम ये श्रीलंका को क्लियर कट एडवांटेज है. 4 मैचेस जीत चुके हैं, 1 सिर्फ न्यूजीलैंड ने जीता. दिस इज द वर्ल्ड कप स्टैट बेसिकली फॉर दीस. ये अब ये देखना ये है कि वैसे टीमों को, you see, if I'm a player, I really doesn't matter to me what happened last year against certain team. I think it's good for people to know the stats in general. अब ये वर्ल्ड कप का ये भी नहीं पता कहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में जीते हैं. ज़्यादातर वहीं पे जीते सारे हैं. वहीं पे हुए. सो आई थिंक द मेन थिंग इज दिस के अब ये दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट है, लाइक यू सेड. सो दिस गेम इज so important for both the sides, and I think on Sydney pitch we have seen it's the highest scoring pitch in Australia. Average score is 194. We have seen New Zealand thrashed Australia, and Sri Lankan team obviously उनके भी I think 3 पॉइंट है अभी. 2 पॉइंट है. 2 पॉइंट है. पहला वो मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, पहला जीते थे आयरलैंड से, दूसरा हारे थे ऑस्ट्रेलिया से. That is correct, yes. And yeah, it's a big game for both the sides, and I'm looking forward to seeing one player. अब एक इनिंग में इस वर्ल्ड कप में जो अभी तक मुझे बैटिंग में नजर आया है, वो जो I want to see is Finn Allen. I think he was phenomenal. Whatever he scored, 30-40 odd in first game against Australia. Yeah. And it was his attitude against one of the best and the quickest bowlers in the world. Mitchell Stark का पहला ओवर चौका छक्का. So you know, ऐसे क्रिकेटर को देखने का मजा आता है. This is not slogging, am I right, guys? Yeah. This is proper cricketing shots with positive intent. Yeah. When we talk about intent, we talk about this sort of batting. Yeah, it was just fantastic the way he played all around the wicket, Misbah. In all directions, square, बिल्कुल. straight. जो उन्होंने अपनी पावर शो की है या जिस किस्म की बैटिंग शो की अगेंस्ट क्विक बॉलर्स, वो तो उसका कोई जवाब नहीं. अभी तक वर्ल्ड कप में इस तरह डोमिनेट किसी ने भी नहीं किया फास्ट बॉलर्स को. मोस्टली जो ओपनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आज जो सबसे बड़ा एक जो मैच विद इन द मैच या गेम विद इन द गेम, वो जो है कि स्पिनर को कैसे खेलते हैं. ठीक से ना, वो एक आएगा उनको टेस्ट यहाँ पे. फिर ऑब्वियसली अंडर प्रेशर ज़रूर है उनके लेग स्पिनर, बट लेट्स सी हाउ ही टैकल्स द लेग स्पिनर, श्रीलंकन लेग स्पिनर. सो
मेरे ख्याल में इसको आपके ख्याल में जब फिन आएगा पहला ओवर में भी ये शायद फास्ट बॉलर से कराएं, ऑल्दो दे स्ट्रगलिंग, दे हैव 3 इंजरीज ऑलरेडी. Chamira is out, Fernando is out, Madhushanka is also injured. So क्या आपके ख्याल में कि पहला ओवर कराएंगे स्पिनर को कि दूसरा कराएंगे फिन एलन के खिलाफ? मुझे तो ये लगता है कि पहला ओवर चांस हो सकता है कि ठीक शना से ही शुरू करें. Okay. दूसरी तरफ से भी हो सकता है ऑफ स्पिनर को कराएं या व्हाटएवर, क्योंकि जो उन्होंने देख लिया है कि वो पहले ओवर से वो ये कोशिश नहीं करते कि आके मैं सेट होना है, मैंने 2-3 बॉल लेने हैं. पिछले मैच में जिस तरह राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मिचेल स्टार्क पे एक हमला किया उन्होंने और पहले ओवर में ही ऑलमोस्ट वो एक दफ़ा पूरा बैकफुट पे कर दिया है ऑस्ट्रेलियन टीम को. तो मुझे लगता है कि श्रीलंकन कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होंगे कि ये बड़ा क्रूशल प्लेयर है और इसको जितनी जल्दी हम आउट करेंगे, जो अर्ली ऑन जो प्रेशर वो डालते हैं आके किसी भी टीम पे, उससे बचने के लिए दे हैव टू जस्ट गेट हिम आउट. क्योंकि उन्होंने भी तो प्लान किया होगा ना श्रीलंका ने, हाउ टू टैकल यू नो स्पेशली न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग पेयर है फिन एलन एंड को. सो आपके ख्याल में वो नए गेंद से आएंगे कि पहला ओवर क्या करना चाहिए उन्हें टू एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन द न्यूजीलैंड साइड, स्पेशली फॉर द यू नो दैट एट स्टार्ट दे आल्सो यू नो दे हैड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? वसीम भाई, I feel कि you know, Finn Allen, he likes a bit of pace. He likes early on with fast hands and he likes pace. वो pace को use करता है. Yes, he hit beautiful जो चौके या छक्के उसने जो सामने मारे हैं स्टार्क को, they were just outstanding shots. और उसमें नहीं वो हिला, but he likes using his feet. So if you don't give him an early pace, then he might be in trouble. See that he stand and deliver, जिसको बोलते हैं ना, खड़े खड़े मारता है, and then he reads the bowler कि अब इसने थोड़ा सा पीछे करना है, so I am gonna come at him, I'm gonna really, so that's a very very positive frame of mind. दोनों opener and both the openers are in very good nick. Yeah, दोनों. और फिर खब्बा सज्जा जो होता है वो makes life very very difficult for the bowlers. Doesn't matter आप you know world class bowler हो या ना bowler हो, if someone is in this frame of mind जो अभी हम देख रहे हैं, then it is very very hard to sort of you know get him out, because आप defensive हैं as a bowler and you're not thinking of getting him out, you're thinking of just surviving कि किसी तरीके से मेरे बॉल निकल जाए, मैं डॉट बॉल कर लूँ, and he doesn't give you that opportunity. So I think spin is going to be the way forward. It all depends on कि किस pitch पर खेल रहे हैं. अगर तो ये used pitch, I think it might go in Sri Lanka's favor, but if it is a fresh pitch पे देखा कि बॉल इतना स्पिन नहीं होता या इतना वो ग्रिप नहीं करता, so it will come onto the bat, and I don't think he will worry, because he will come you know down the track. Sorry, the pitch comes into play, Misbah. अभी तक हमने इन तीनों मैचेस में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो ही मैच जीती है. चेस करना मुश्किल हो जाता है इस पिच के ऊपर, या स्कोर इतना बड़ा लग जाता है कि फिर वो बंदा प्रेशर में आ जाता है. हाउ इम्पोर्टेंट विल द टॉस बी टुडे? टॉस इम्पोर्टेंट है, आई थिंक स्पेशली सिडनी में, क्योंकि श्रीलंका की भी जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो कोशिश करेंगे कि टॉस जीत के हम बैटिंग करें और अच्छे रन्स लगाएं बोर्ड पे. अभी तक तो दोनों मैचों में पहली इनिंग में ही वो दूसरी टीम ने बैटिंग में ही बाहर कर दिया था अपोजिशन को. तो मेरे ख्याल में टॉस इम्पोर्टेंट होगा और श्रीलंका चाहेगी भी यही कि वो यूज़ पिच पे उनके स्पिनर्स को बाद में मिले और वो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट कर सके. बिल्कुल सही. ऑब्वियसली देयर ओपनर्स नॉट ओनली फिन एलन, दूसरी तरफ से कॉनवे की जो इनिंग थी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक शना और इवन ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे. अर्ली विकेट्स अगर गिरी तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज़रूर आएगी. ऑलराइट, सो वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट कि ये पिच कौन सी होगी और किस तरह की पिच में खेला जाएगा. तो आइए चल के नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पे, brought to you by Ensure. Well, there you have the pitch report. A lot of grass on that one, and it's a fresh pitch, Wasim. Yeah, it is. It's a typical, you know, when we talk about Australian pitches, कि वहाँ पे बाउंस है, घास है. अब देखें, आप हूवर में देखें इसको, और ग्रीन टिंज भी है, और ये ग्रास के ऊपर रोल किया हुआ है. ग्रास को हमने वो शीशे से काट के बिल्कुल गंजा नहीं किया उन्होंने, उसी के ऊपर रोल किया है. हंस रहा है मिसबा. और जब उस पर आप रोल करते हो तो आई थिंक विकेट फिर जुड़ी भी रहती है, टूटती नहीं है, बॉल ग्रिप कम करता है. बट इट्स अ फ्रेश विकेट एंड आई लव्ड डेल स्टेन्स पिच रिपोर्ट. He said there could be a bounce and pace there as well, and win the toss and bat. Yeah, I like that's a very comprehensive, summarized pitch report, Waqar.
कि भाई बाउंस भी है, बॉल बल्ले पे भी आएगी, विन द टॉस, जीतो भी, कहा भी है। Before Vicky answer this, I throw a question out to both of them कि इस तरह की पिचेस हमारे यहाँ बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती T20? हैं? अब बन सकती हैं, यू नो, इवन दुबई में भी दिखाया कि दुबई में भी बन सकती हैं। इट्स सेम सॉइल, पाकिस्तान से ही सॉइल गई हुई है वो भी। तो घास छोड़ने की बात है, हमने प्रैक्टिसेस में बहुत दफ़ा जब हम इंग्लैंड जाना होता था तो हम घास छोड़ते थे। थोड़ा बहुत सीम होता है अर्ली ऑन, बट दैट्स हाउ इट इज़। बट जब वो सीम 1-2 ओवर में ख़त्म हो जाता है, इट बिकम्स अ बेल्टर। इनमें बाउंस होता है, वो बाउंस गोज इनटू अ बैट्समैन्स फेवर। और आई फील के यू नो एज अ बॉलर ही इज़ डन अ गुड जॉब विद द पिच रिपोर्ट। और ऑल्सो क्योंकि वो घास इसलिए भी स्पेशली सिडनी पे ज़्यादा छोड़ते हैं क्योंकि सिडनी की जो सॉइल है वो बेसिकली क्रम्बल हो जाती है स्पिनर्स के लिए। सो अगर वो घास छोड़ देते हैं तो वो इतना स्पिन नहीं करेगा। सो इट विल बी लाइक अ हाई स्कोरिंग गेम, बिकॉज आपने देखा है कि नंबर्स भी ये बता रहे हैं कि हाई स्कोरिंग गेम्स अभी तक यहाँ पे हुई हैं। जी मिसबाह क्विकली देखिए, लाहौर में स्पेशली वकार भाई भी थे, जितनी दफ़ा हम वहाँ पे खेले, इवन में भी जब आपने ऊपर ग्रीन ग्रास होता था, कवर्ड, मॉइस्चर ना हो, पिच हार्ड हो और ग्रास हो ऊपर, तो एक्चुअली इट हेल्प्स द बैट्समैन। और लंबे लंबे स्कोर 180 190 होते। लेकिन जब आप लाहौर की स्पेशली पिच ग्रास आप हटा देते हैं, वो बहुत ही स्लो पिच हो जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके बैट्समैनों के लिए भी। गेंद कीपर तक नहीं पहुंचती, आपको शॉट भी इस तरीके से। एक दफ़ा पिंडी भी PSL हुआ था और कराची भी हुआ था, उन्होंने हल्की सी ग्राउंड्समैन ने घास छोड़ के और कितने हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही थी। पौने 200 that's what people want. I think that's what fans want. Fans want boundaries and big scores and a big chase and a big fight and a big break. We're going to see you after the break. Keep watching the Pavilion on A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. Today we're heading into Sydney, जहां पे श्रीलंका का मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड जिन्होंने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से डिफीट दी थी, they're looking really good. But to get some points on that table because they only have 2 points at this time stage, and New Zealand are right on top of that table in this group. मेरे साथ Pavilion में मौजूद, I've got the legends, I've got the superstars, I've got Miss Paul Haq, Waqar Younis and Wasim Akram, and we had that pitch report जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त, आपको तो बहुत अच्छी लगी वकार पिच रिपोर्ट स्टेन की तरफ से। देखिए, पिच रिपोर्ट का ये है कि पिच अच्छा बॉलर जो होगा, आई स्टिल फील के ही विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। पेसर जो होगा, क्योंकि फ्रेश पिच है, घास है, तो आई फील के उतना बाउंस तो खैर नहीं मिलेगा जो मेलबर्न में आपने देखा है या पर्थ में आप देख रहे हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द सॉइल है कि उतना गेंद नहीं यहाँ पे फ्लाई करता। सो आई फील के अर्ली ऑन न्यू बॉल, आपने देखा हमने कि न्यूजीलैंड के बॉलरों ने पिछले मैच में जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दे अर्ली ऑन बॉल वेल एंड द बॉल swung. Of course experience came into play also, but it's I think it would be a fair pitch. It will be a fair pitch. Wasim, let me ask you this. So Sri Lanka spin dependent, ठीक है, इंजरीज हो गई उनके फास्ट बॉलर्स को, इस तरह की पिच उनको मिल गई है। Now how do the spinners adapt to this pitch? What do they change? Their lengths, their lines? What happens in the spin department? Spinners should bowl whatever their strengths are. I mean, Tikshana we know हर एक को तंग करता है, कैरम बॉल भी है, गुगली भी है, then Hasaranga is there, then De Silva is there. It's very difficult to tell from here कि what sort of length he should be bowling at, but it's very simple on this wicket. A lot of variation, especially नहीं करेगा, नया गेंद टर्न नहीं करेगा, तो आई थिंक वो फिन एलन वगैरह का प्लान होगा कि मारे तो सीधा मारे, खड़े खड़े सीधा मारे स्पिनर्स को भी। सो उस तरीके से फिर इनको लेंथ खींचनी पड़ेगी। बट मिस्ट्री बॉलर तंग तो ज़रूर करता है, नो डाउट। और श्रीलंका आई सपोज इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपका स्केड्यूल कैसा है ऐसे छोटे वर्ल्ड कप में। यू नो, एक मैच आप हार जाओ तो यू काइंड ऑफ you panic as a team. अब जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ, like we are at the moment, like with Pakistan we are, कि यू नो जिम्बाब्वे से हारे, फिर इंडिया से हारे, अब वी आर लाइक यू नो सारे जीतने भी हैं, किसी और ने भी हारना है। सो अब श्रीलंका टफ स्केड्यूल था इनका भी। जीलोंग से दे ट्रैवल टू होबार्ट, फ्रॉम होबार्ट दे ट्रैवल टू पर्थ, दैट्स गुड 4.5-5 hours फ्लाइट, देन फ्रॉम पर्थ दे बैक टू सिडनी, अनदर 5 hours फ्लाइट। रिकवरी में भी टाइम तो लगता होगा, स्पेशली इस छोटे फॉर्मेट में। एकदम तो नहीं आप उसमें टाइम डिफरेंस भी है पर्थ और सिडनी में। दौड़ा के मार रहे ना दौड़ा के मार, जिस उनकी इंजरीज भी वैसे ही इतनी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हुआ। फटीग आपके पास, एक तो मैच की फटीग है, फिर मेंटली आप जब
मैचेस इस तरह से हो रहे हैं, फिर ऊपर से ये ट्रैवल, आई थिंक आफ्टर 5 आवर्स फ्लाइट, इससे ही है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और फिर टाइम जोन भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। 3 घंटों का टाइम डिफरेंस है। आई थिंक द बिगेस्ट इशू आई फील कि श्रीलंकन्स को जो फेस पिछले मैच के बाद हो सकता है आज भी हो, वो हसरंगा है। हसरंगा ने उनको बहुत जितवाया पिछले 2 साल में। ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। बैटिंग उनकी अच्छी चल रही है, बैटिंग का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रन्स 200 करा दोगे या 190 प्लस करा दोगे तो देन हसरंगा भी कुछ नहीं कर सकेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और पिछले मैच में हसरंगा इज़ बीन थ्रैश्ड। Yeah, I know that was very bad bowling figure. Fiction was very very good. He bowled really well and he can bowl 4 overs only. That's the thing. दोस्तों अगले जो 16 ओवर हैं, न्यूजीलैंड को भी मालूम है कि उन्होंने दे कैन टारगेट एनी बॉलर, दे आर गोइंग थ्रू इंजरी इशूज। सो हसरंगा का आज अच्छे बॉल करना या अच्छी लेंथ पे बॉल करना, ये विकेट निकालना, वो बहुत क्रूशल होगा श्रीलंका के लिए। बिकॉज once he gets under pressure, और पर्थ की पिच ये थोड़ी सी, टू बी फेयर विद हसरंगा, पिच की थोड़ी सी मुश्किल थी। इस तरह के बॉल जब वो करता है, फ्लाइट देता है, इट इज़ हार्ड, क्योंकि यहाँ पे घास था पिच पे, पड़ के गेंद कुछ नहीं कर रहा था। और बिग हिटर ऑस्ट्रेलियंस एंड दे न्यू इट के इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग ऑफ दिस सरफेस, तो दे took him to literally cleaners. और उनके in Australian batters defend in their defense, जो भी उनके जोन में बॉल आया है, जो भी जोन में आया है वो गए हैं। ये नहीं कि उसने ये गुगली की है या लेग ब्रेक की है या कैरम बॉल की है, उनका प्लान बॉल जो है ना, बॉल ऑफ द सरफेस उनको मालूम नहीं होना। बिल्कुल, ये उसी तरीके से कहा था, इस अगर स्क्वायर में आया मेरे इसमें तो मैंने जाना सीधा या मिड ऑन की तरफ जाना। एंड इंटरेस्टिंग मिसबा के जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स थे, उनके दिमाग पे एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं है कि दिस इज हसरंगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर्स दैट श्रीलंका हैज इन द रीसेंट पास्ट, एज वकार सेड, बहुत सारे मैचेस जितवाए, दे जस्ट वेंट आफ्टर द बॉल। देखिए, मुझे हमेशा से लगता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हसरंगा गुगली पे, और अभी तक दुनिया ने जितने भी प्लेयर उसके अगेंस्ट खेले हैं, और स्पेशली जब वो खेलता है एशियन कंडीशंस में, तो वो एक तो बाउंस का जो फ़र्क है कि वो गुगली मोस्टली स्टम्प्स को हिट करती है, लेग बिफोर होते हैं, वो आप जो स्पेशली ये टांग रख के शॉट मारते हैं, वो मारनी मुश्किल हो जाती है उसको। यहाँ पे बाउंस है तो आराम से उसको वो वाली शॉट लग रही है, उसकी वजह से वो थोड़ा फुल जाता है। तो फुल भी अच्छी पिचेस पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी जहाँ पे ट्रू आती है, सामने की बाउंड्रीज वैसे छोटी हैं, सामने भी उसको शॉट लग जाती है, तो जिसकी वजह से वो फंसा हुआ है। अब जो बॉलर्स ठीक है ना, क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो एक तो उसके पास वेरिएशन है, दूसरा वो थोड़ा क्विक थ्रू द एयर बॉल करता है, वेरिएशन, और साथ वो अपनी लेंथ को बड़ा अच्छा वेरी कर रहा है। हसरंगा फ़िलहाल जो उसकी मेन बॉल है वो फंसा हुआ उस पर, जो थोड़ा बैक ऑफ लाइन गुगली करता है, यहाँ बाउंस अच्छा मिलता है तो उस पर उसको लग रही है, उसको समझ नहीं आ रही है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि जब से हसरंगा खेला है अभी तक उस पर प्रेशर नहीं आया, उसने डोमिनेट किया है हमेशा दुनिया के सारे बैट्समैनों को। फर्स्ट टाइम है कि जब वो अंडर प्रेशर हुआ है, जब उसको ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली ठीक ठाक मारा है। तो अब श्रीलंका के लिए, हसरंगा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कम बैक कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे थे कि उनकी जोन में फखर आएगा। अब जब ये शॉट लगती है ना बॉलर को, स्पिनर जितना मर्जी अच्छा हो, वो एक दफ़ा घूम जाता है जब रिवर्स मारते हैं, फिर उसके बाद आई सपोज दे जस्ट अटैक्ड हिम। So I think that's an Aussie mindset, isn't it? ये जो बैकफुट पे शॉट है जो लगी है ना वसीम भाई, ये जब एशिया में या दुबई में या श्रीलंका, यहाँ पे आप नहीं, यहाँ वो गेंद घुस जाता है नीचे, इतनी देर में आप बोल्ड हो जाते हैं, या आप वो उसको पुल मारने का आपके पास टाइम नहीं बचता। नहीं, ऑस्ट्रेलियंस का ये माइंडसेट रहा है हमेशा, टू अटैक द बेस्ट बॉलर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड दैट्स व्हाट दे एग्जैक्टली डिड इन दैट गेम, एंड आई थिंक न्यूजीलैंड इज प्रोबब्ली विल डू द सेम। राइट वकार, यू वांट टू ऐड समथिंग? जितने भी अटैकिंग बॉलर्स आप देखेंगे ना, कि वो क्योंकि दे लुक फॉर विकेट्स एंड ही इज़ वन ऑफ देम। आप देखेंगे स्टार्क को देखें, आपको शाहीन को देखेंगे, दे लुक फॉर अर्ली विकेट्स एंड ही इज़ लाइक अ वेरी अटैकिंग बॉलर, ही लुक्स फॉर विकेट, और उसकी विकेट्स की वजह से श्रीलंका जीतता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे ऑन अ फ्लैट डेक, यू कैन गो all around the park, and we've seen in Stark's case also, in Shaheen's case also, and now Hasranga. All right, we've got Gusal Mendes with us right now. Let's listen in. All right, there you have it, Gusal Mendes there, and with that, interestingly now, let's take a look at the New Zealand bowling. One of the most successful bowling in T20 in the power play, Misbah, New Zealand, big advantage to them. बिल्कुल, मेरे ख्याल में जितने एक्सपीरियंस हैं दोनों, और जो अच्छी चीज़ वो ये है कि पिच को इक्वेशन से निकाल दें इनकी बॉलिंग में।
जैसी मर्जी पिच हो, अर्ली ऑन वो स्विंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि बॉल को, टीम सऊदी हैं या बोल्ट है, जैसी मर्जी पिच हो अर्ली ऑन। अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लें कितना बड़ा स्कोर हुआ, बट द वे दे बोल्ड, न्यू बॉल आके एरिया में, और बड़ा जल्दी वो अंडरस्टैंड करते हैं कंडीशंस को, वेरिएशंस भी आती हैं, और फिर उनको जो मैचअप्स हैं कि किस बैट्समैन को हमने कौन सा गेंद करना है, किसको रूम नहीं देना, किसको फुल करना है, किसको स्लो वन ज़्यादा यूज़ करना है, दैट गिव्स देम अ ह्यूज एडवांटेज। और आप देख लें पिछला मैच टीम सऊदी ने और बोल्ट ने जिस किस्म की बॉलिंग की, टीम सऊदी ने ऊपर से वार्नर को आउट किया और बोल्ट ने भी आउट किया है, तो वहाँ से ही मैच वो एक तरफ लग गया। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की जितनी स्ट्रेंथ थी वो मेरे ख्याल में 200 रन्स भी कहीं ना कहीं ऊपर से पार्टनरशिप लग जाती तो वो नॉर्मली वो इतना स्कोर कर जाते हैं। तो आई थिंक की बॉलर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इनकी बड़ी ज़बरदस्त वो रही है। बिल्कुल, एंड टिम सदी इज़ वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट। ही इज़ नंबर 2 आफ्टर शाकिब अल हसन की 125 है, और इसकी भी 125 ही इंटरनेशनल विकेट्स हैं, और इसकी पेस नहीं है। ही लॉट ऑफ वेरिएशन इवन विद द न्यू बॉल, बैक ऑफ द हैंड कटर, फिर वो द लेग कटर, द ऑफ कटर, सो एक्सपीरियंस है इसको। या मिचेल सैंटनर का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ, 5 मैचों में 7 विकेटें ली उन्होंने, 17 उसमें, बट मिचेल सैंटनर सो हाँ, ये रहे मोस्ट विकेट्स जो आप उसी में भी बात कर रहे थे। That's him. Sadi also with 125 Sodi is also there. But his economy rate is a little higher than Shakib Al Hasan. And Shakib bowls in the middle, he bowls with the new ball. Mostly. And Sodi is also there. Sodi is there. Wickets. I think he's a very good bowler. He's a tall leg spinner. Googly भी आती है, flipper भी आता है, और इसको extra bounce भी मिलता है pitches पे. सैंटनर, वकार हम बात कर रहे थे, सैंटनर being a spinner, New Zealand, so Sri Lankan batsmen should they play best spinners in their nets all the time, yet Santner has been very successful against the Sri Lankan batsmen. Yeah, I mean कुछ bowlers होते हैं certain teams के against, उनका record अच्छा होता है, वो they feel good factor होता है उनको, और Santner is one of the glue in New Zealand team. अगर New Zealand team को अगर उठाएंगे ना तो आपको ऊपर के 5 बैट्समैन और फिर आपको जो 2-3 ऑलराउंडर मिलते हैं ना, they're really quality all-rounder, and he's not only a bowler, he bats really well and he fields really well, he gives so much energy to the team. पिछले अभी recently जो सीरीज़ हुई है उसमें इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं, पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड में था, but he was also injured, he was also having his wife was having a baby, so he was a little bit off color, but पिछले मैच में देखा कि he bounced back really well against a mighty Australian, so I think he will be the factor once again. अगर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती, सेकंड टाइम अभी आपने 2-4 बॉलें जो देखी उसमें थोड़ा सा गेंद ग्रिप हुआ है, इसलिए भी मुश्किल है। एक तो लंबा है, 6 फुट 3-4 इंच का है, और फिर कुछ स्पिनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इमाद की बात कर लें, मोस्टली पता है कि वो नए बॉल्स उसका टर्न नहीं होगा, पर इसका ये है कि इसका बॉल टर्न भी होता है, नया बॉल भी इसका ग्रिप करता है और लंबा है और वाइड ऑफ द क्रीज करता है, सो वो जो सटल वेरिएशन है उससे देखें ना, हाथ इसका वाइड बाहर से आता है और बिल्कुल वाइड जाता है, और एंगल से कभी बॉल ड्रिफ्ट होकर अंदर आता है, फिर कई दफ़ा जब टर्न होता है तो उस पर इसको दिक्कत मिलती है, दैट्स व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट। डैनियल विटोरी याद है आपको, दैट्स द रोल आई थिंक ही इज नाउ टेकन ओवर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वेरिएशंस उनकी सारी उन्होंने रखी हुई, लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, एक रियल फास्ट जिसको क्विक बॉलर कहते हैं, जो कि टेस्ट करता कि वो भी लोकी फर्गसन वो भी है, 2 स्विंग बॉलर ऊपर से, तो आई थिंक ओवरऑल जो बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड का बड़ा बैलेंस, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसा मर्जी बैट्समैन सामने आए, उनके पास वो वेरिएशन है कि उसको कैसे मुश्किल में डालना है। सेंटनर ऑब्वियसली IPL बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है पावर प्ले में बॉलिंग करता है, सो ये जो एक्सपीरियंस है आपके पास पीछे स्पेशली T20 क्रिकेट का, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। Yeah, the experience definitely helps you a lot. You're watching the Pavilion. This is A Sports and 10 Sports. आप लोगों से मुलाकात होगी इस वक्फे के बाद। देखते रहिए हमारी ICC Men's T20 World Cup की coverage right here on A Sports and 10 Sports.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. And today we have Sri Lanka clashing with New Zealand. New Zealand की बात करते हैं. Daryl Mitchell जो है वो फिट हो गए हैं इस बार दोबारा. ये वही Daryl Mitchell हैं. 72 बनाए थे इन्होंने नॉट आउट अगेंस्ट इंग्लैंड. वो जो बड़ा कंट्रोवर्शियल फाइनल कहेंगे, जो भी कहेंगे उसको वर्ल्ड कप का. बट ही इज फिट अगेन. एंड मार्क चैपमैन को मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि उनको रिप्लेस करें. मगर ये किस नंबर पे खेलेंगे, और अगर ये तो फिर एलन फिन का क्या होगा? लग तो यही रहा है कि मेरे हाल में वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, या 4 पे या 5 पे खेलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर से कोई चेंज करेंगे आफ्टर दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट. ओपनिंग वही रहेगी. नंबर 3 पे मेरे ख्याल में उनके कप्तान विलियमसन ही खेलेंगे, तो नंबर 4 या नंबर 5 पे खेलेंगे. बट ऑब्वियसली जो इतना परफॉर्म किया हुआ जिस प्लेयर ने पीछे, जब से वो पिछले वर्ल्ड कप में खेले हैं और उसके बाद जितनी भी सीरीज़ खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है. उन्होंने टेस्ट में भी हमारे अगेंस्ट 100 किया, तो ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि बहुत कंसिस्टेंटली जिसने परफॉर्म किया. और न्यूजीलैंड चाहेगी कि ऐसा मैच विनर वो लेके आए उसमें. लेट्स सी. ऑब्वियसली उनका द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ओपनर मार्टिन गुप्टिल, ही इज इन द स्क्वाड, बट दे ऑप्टेड आउट टू प्ले द यंग फिन एलन. और गुप्टिल का करियर स्ट्राइक रेट 136 का है, 200 हैं, 20-50 हैं और 3,500 रन है. आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 5 रन गेटर्स में से आता है ये. But you look, if they have to sit him out, they'll sit him out. Yeah, I suppose what's better for the team. That's it. Team comes first, more than any star or any superstar or legend, whatever. But it's all about the team first. ये डेरिल मिचेल की बैटिंग जरा देखते हैं. उस पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल की जो इनिंग्स थी, क्या शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ. आपकी स्क्रीन पर वकार. I mean, New Zealand have got all the good problems. all the good problems. और good problems में sometimes आपको मुश्किल हो जाता है डिसीजन करना के. लेकिन आई फील के इनको अभी नहीं खिलाएंगे. वो इसलिए नहीं खिलाएंगे कि एक तो मैच प्रैक्टिस में नहीं है, उनका फ्रैक्चर था हाथ उससे आ रहे हैं वापस, और टीम अच्छा कर रही है. सो व्हाई डू यू वांट टू मेक अ चेंज? येस, ही इज़ डन एक्सट्रीमली वेल इन द लास्ट ईयर और सो. वर्ल्ड कप में भी जितवाया हुआ है. लेकिन जो जिस बंदे को ये रिप्लेस करने अगर जाएंगे भी, तो वो है चैपमैन. एंड चैपमैन ने भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट और अपना बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने भी अच्छा खेला, और फिलिप्स ने अच्छा खेला हुआ. सो आई डोंट थिंक वन शुड मेक अ चेंज, बट ये वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन. इफ दे फील दैट दिस इज रिक्वायर्ड ऑन दिस पिच इज फॉर tailor made for him though. So you never know, they might play him, but do you want to make a change in a team? Although उनके कप्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना अच्छा नहीं है. पिछले एक साल में आई थिंक इज अराउंड अबाउट 117 और समथिंग. लेकिन उसकी कप्तानी इतनी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए कि यू कैन नॉट रियली आस्क हिम टू सिट आउट. ही इज सच अ ग्रेट ऑपरेटर ऑफ द गेम. और फील्ड में जो उसकी कप्तानी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बैटिंग से. सो दे हैव गॉट, एज आई सेड, ऑल द गुड प्रॉब्लम्स. Yeah, they have all the good problems. Why do we not have those good problems? There's one explosive batsman after another explosive batsman after another explosive batsman. Finn Allen is one of those explosive batsmen, and we have him right now with us. Let's listen in. There you had it, Finn Allen there. Fire and ice is the combination for their openers. That's what they're calling them, huh? That I didn't know. Interesting. And he was too modest. He said, "I'm not the fire. I don't know who is that." But he's definitely a fire in my book, man. The way he played other day against the mighty Australians, he took the game in first 4 overs from Australian को पता ही लगा हुआ क्या उनके साथ. So ये कॉनवे की बात कर रहे थे. फायर एंड आइस का जो कॉम्बिनेशन है, विलिंगटन के लिए खेलते हैं दोनों इकट्ठा कहते हैं. So it's really awesome that हम बड़े अरसे से विलिंगटन के लिए खेल रहे थे. Now we're doing it for the Black Caps. चेक करेंगे. फायर तो वो इसको कह रहे हैं, तो आइस जो है वो भी, उसका भी स्ट्राइक रेट 136 का और 57.38 की एवरेज है. ठंडा है वो जरा इसके मुकाबले. नहीं, इनके सारे प्लेयर जो हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में, और ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर देखो, अगर आप 6-7 वाला भी ब्रेसवेल भी देख लो. ये देखिए आइस की तरह बैटिंग देख रहे हैं आइस भाई की. आइसमैन लुक एट दैट. आइसमैन almost averaging 60, 57 point something, and look at the shots he's beautiful shots. I mean 92 on 58 balls. Yeah, he looks so majestic. I think इन्होंने सिंपल फंडा रखा हुआ है कि अर्ली ऑन
अर्ली ऑन फिन एलन विल टेक ऑन, और अगर वो आउट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से खेलता है देयर इज एवरी चांस कि वो अर्ली ऑन आउट भी हो सकता है. अगर वो आउट होता है, विलियमसन कम्स इन एंड ही टेक्स ओवर, देन ही प्लेज that role. Risk and reward. So he plays, and then comes Phillips. Phillips is another one who's very destructive. Then Nisham, I mean, you name it. They've got. अभी तो bowling में हम बात करें तो bowling में Adam Mill नहीं खेला अभी तक. He is another very fine bowler. So they've got, as I said, all the good problems, and they've got a bench which is probably one of the strongest. Their population is about 4.5-5 million people. अब यही बस ये Probably, ना yeah. जख्मों पे नमक छिड़के आप. No, I'm just saying. No, you are saying what you're saying, but आप जख्मों पे नमक लगा. अगर वसीम भाई पॉपुलेशन से टीम बनती हो तो फिर तो हम बड़े मतलब है वर्ल्ड बीटर्स हो ना. Yeah, probably. अभी तो Inshallah, I think they're a very fine, they're a very sport loving nation. They're world champions in rugby also. So they have got They have the facilities and the funding. That also, and they also got a system. जो स्कूल से जब आते हैं, जो बच्चे जो आते हैं, इतने बच्चों को तो रग्बी खिलाना शुरू कर देते हैं, क्रिकेट खिलाना शुरू. So they pick them up early. They've got academies where they just train them, and then they throw them up there. हमारे यहाँ चौधराहट ही नहीं खत्म होती. बस वो यही तो मसला है बॉस. And there you have the Kiwis. चौधरियों ने भी तो कहीं रहना है ना. हाँ, after all, चौधरियों का भी ख्याल रखना अपने मल्ले ही चाहिए. रहन. Images coming out of the stadium there. The At Black Caps, SCG. SCG, to Sydney. Ms. Paul, what's going on with Kane Williamson? आई थिंक कि उनका अभी कुदरती समटाइम्स ये होता है कि आप कुदरती? हाँ जी, ये कुदरती तौर पे वो जो कुदरत का निज़ाम है ये हो जाता है. समटाइम्स आपके ओपनर भी अब देखें आउट ऑफ फॉर्म, दे वर स्कोरिंग रन्स द लास्ट 2 years. अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट गेम्स में आपके 2 मैचेस में नहीं हुआ रन्स, तो आपको प्रॉब्लम सारे आपके सामने आ गए. तो आई थिंक उस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक विलियमसन जैसा वो प्लेयर है. I think in his defense, the way he is batting nowadays, it probably suits the way the playing 11 is. Right. Because everybody is a kind of a big hitter, and you need someone in between 120, 125, 17 के. Busy player. He's a very busy player. Partnership बनाए. Correct. He's a very busy player. He runs between the wicket Yeah. really well. He pushes the ball into the gap and look for rotation of strike. और दूसरा ये है कि अगर इसके साथ कोई दूसरा बड़ा हिटिंग कर रहा होता है ना, तो ये फिर ये ज़्यादा कोई चांस नहीं लेता. What he does is just rotate the strike, give it to the other guy, and ask him to keep going. Yeah, that makes him, and his captaincy skills are really well. He brings the team together really well. Bowling changes बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं. Matchups, जो इनके पास डेटा आता है या मैचअप्स आते हैं, मिस भाई, you think that he's taken all of that mental notes and gone in there, or is there consistently some kind of communication? He sits with the people beforehand, the proper meeting करते होंगे. देखिए वो मीटिंग्स आपकी होती हैं ऑब्वियस, ये हर मैच से पहले आप बैठ के एनालाइज करते हैं, बट बीइंग द कैप्टन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आप अपोजिशंस उन्हीं अपोजिशंस के अगेंस्ट इतनी दफ़ा खेलते हैं कि आपको वो बस सिर्फ एक रिफ्रेश ही करना होता है उसको. मोस्टली यू नो प्लेयर्स के अच्छा ये कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इसकी वीकनेस है, इसके अगेंस्ट क्या टैक्टिक्स होंगे. तो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे स्पेशली जो ऑपरेटर्स हैं या ऐसे कैप्टन हैं उनको हेल्प करता है. उनको इतना ज़्यादा मैच से पहले नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि आप पहले उनके अगेंस्ट कोई 15-20 मैच खेल चुके हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट. यू नो हो गया मैंने कौन सा बॉलर लगाना है, कहाँ वीक है, क्या करना है, ये कंडीशंस कैसी हैं. तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. I think ये जो इसकी जो गेम रीडिंग है ना, that is extraordinary. और फिर क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और टीम भी जो इनकी होती है, they really small, and what they do is they gel well. और अगर सपोजिंगली बड़े मुश्किल टाइम पे मैंने देखा अभी भी जो ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की रिसेंटली, अगर वो देखता है कि जी आई वांट हिम टू बाय मी अ विकेट, और ये नहीं उसको बोलना नहीं पड़ता उसको. व्हेन ही थ्रोज द बॉल टू द बॉलर नो एग्जैक्टली व्हाट इज कैप्टन आस्किंग फ्रॉम हिम.
I've never seen him doing too bigger of a meetings. एक दो इसके होते हैं, टीम सऊदी हो गया या बोल्ट हो गया, उनके साथ ये कंसर्न करता है, and then he reads the game really well, and then of course इसका कोच और इसके of course जो बाकी प्लेयर हैं और पूरा क्रिकेट बोर्ड है, they back him with his ability. Yeah, they do. We've got a feature, special feature on Mr. Phir himself, Finn Allen. Finn Allen there, he's going to be really sought after by the franchisees around the world. Yeah, he's going to be a mega superstar in the T20 format, and he looks relaxed, he looks comfortable, he looks like he belongs at this level. So that's a good sign when you see some young, exciting talent coming He's only up. 22. Yeah, Karachi Kings. What? Karachi Kings. Karachi. वो तो बारी पे डिपेंड करता है ना, बारी पे आएगी तो फिर ओपन पे खिलाओगे ना? नहीं, वो आएगा तो ड्राफ्ट में रखेंगे ना। हाँ, पहले वो क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपने? आप फिर ओपन पे खिलाएंगे? That's a very difficult question to answer. Not my call apparently. फिर 3 ओपनर हो जाएंगे ना आपके पास, शर्जील खान, बाबर और ये। Okay. I don't know what are we talking about. Ooh. Yeah, there you have that. You must be wondering कि शोएब मलिक किधर हैं आज सुबह नजर नहीं आ रहे आपको शोएब मलिक. Waqar has a very interesting take on this. Waqar, please let us know where is Shoaib Malik. He's on a break, isn't he? Yeah, he is. He's gone home. He's gone back to Dubai to see his family. और you know, it's good that हमारे जितने भी हमारा जो पैनल है, we are becoming very family oriented. I mean, मिसबा की भी फैमिली आई हुई है. और सबसे जो हैरतकुन बात ये है कि जब मलिक सबसे ज़्यादा हमें तुनता था फैमिली पे कि नो तुसी डर दे हो, तुसी डर दे हो, तुसी किथे हो. Just want to know, Wasim bhai, your comment is more important. I think his son is turning 4 today. Yeah. So it was a big day, I suppose, for the Malik family. So that's why he went for a day. He'll be back tonight. बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर वापस घर जाने पे, जो मुझे समझ में आई है. अगर वो ना जाता आज, अगर वो ना जानता, मैं यही सोच रहे हैं. यही मेरा सवाल ही है ऐसी. सवाल असल में ये सवाल ये था कि अगर वो ना जानता, हाँ क्यों तो आ सही मलिक साहब छेती छेती आ जाओ. द प्रॉब्लम है ये जैसे जल्दी कम क्विकली. Yes, come quickly. And जी शोएब मलिक ने यहाँ पर बैठ के बड़ी दफ़ा इस बात का ताना देने की कोशिश की, कभी वकार को, कभी मिसबा को, कि घर ये मतलब घर में डरते हैं, बेगमार से डरते हैं. बुनियादी तौर पे ये उनका कहना था. फखर अगर वो, लेकिन हमने कल अगर वो आज ना जाता, अगर वो आज ना जाता तो क्या होता, ये आप बताइए. अगर वो आज ना जाता तो क्या होता. वो टेनिस में कौन सी सर्व होती है बड़ी जबरदस्त वाली, एस जो बॉल सीधा लग जाए जाके टन, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. इस टाइप का मामला होता. we wish a little one happy birthday. Yes, absolutely. So to Malik Jr., Azan, a very, very happy birthday from all of us here at the Pavilion and everybody in Pakistan and in India, of course. Happy birthday to both the parents also, you know, to Sania Mirza also. She works really hard on him. And happy birthday. Have a great day. Enjoy yourself. And Malik, come back. Yeah, Malik, he is actually getting back. He's just gone touch and go, फटाफट जाके flight take वापस आने के लिए. But interesting, that's how it is right now. So we've coming very close to the toss. अब से कुछ लम्हात बाद हम toss के लिए जाएंगे. We saw the pitch report earlier. When the toss, Stain says bat first. Yeah, आपने खुद ही बताया कि अभी तक जो 3 मैच हुए हैं, तीनों टीमें जो पहले बैटिंग की है वो जीते हैं. So runs on the board. So far we have seen this in Australia. Actually, runs on the board matters. Rain or no rain. Every game has been like this. Especially at Perth and even Sydney, even Melbourne. Misbah, you wanted to say something about Kane Williamson when we were watching the Finn Allen package. तो भूल गया मैं. That's okay. मलिक साहब याद है मुझे. That's hilarious. हमने जब ये फिन एलन का पैकेज देख रहे थे तो गैरी स्टेड का जो था, जो उनके कोच हैं न्यूजीलैंड के, उनका आपने सुना, बड़ी फिन की तारीफ कर रहे थे. याद आ गई. सॉरी, मिसबा को याद आ गया दोबारा. अजी, जब हम टूर पे थे तो उस वक्त बात हो रही थी स्पेशली अजहर की और बाबर की उनके साथ. तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि बड़ा लिमिटेड हैं उनके पास प्लेयर्स भी और उनकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो भी, तो ये कह रहे थे कि ये एक प्रॉब्लम भी है और ये अच्छी चीज़ भी है हमारे लिए. इसकी प्लस है, कुछ सम प्लस सम माइनस. एक तो ये है कि हमारे पास क्योंकि थोड़े प्लेयर हैं तो हमारा फोकस होता है उन पे, उनको हम बैक करते हैं, हम उनको लेके आते हैं लंबे अरसे के लिए फिर. और
इसी वजह से फिर ये है कि हमारा जो वो पूरा हमारा जो फोकस है वो इधर उधर नहीं होता और उन प्लेयर्स को बैक करके हम ज़्यादा उन पे टाइम लगाते हैं। और हाँ, दूसरी तरफ ये इसका नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट ये है कि आपको जब प्लेयर कोई भी चाहिए होता तो उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से इंडिया में या पाकिस्तान में या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खेल रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी जो टीम है वो जो सर्कल है वो ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स हैं, उन्हीं को पूल छोटा है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, फोकस है वो ज़्यादा रहता है और इसीलिए हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हम इधर उधर स्कैटर नहीं होते। हमारे पूल में तो 3600 प्लेयर है ना। या पूल हमारा भी छोटा ही है कंपेयर टू न्यूजीलैंड ऑल दिस। आई मीन काइंड ऑफ Wasim bhai, Right. I'm going to interrupt you there because we have to cut across to Sydney where the captains are walking out for a toss brought to you by Dettol Soap. All right, there you have it. The news is New Zealand have won the toss and have elected to bat first. Ken Williamson there announcing that one change जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि डैरल मिचेल जो है वो फिट हो गए, टीम में आ गए हैं और मार्क चैपमैन को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है टीम से। So that's one change there. श्रीलंका की तरफ भी एक चेंज है। अब से कुछ ही लम्हों बाद ये प्लेइंग 11 आ जाएगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे। क्या टारगेट माइंड में होगा आज मिसबा बैटिंग फर्स्ट न्यूजीलैंड के लिए? 200 चूँकि एवरेज है यहाँ पर। कोशिश करेंगे मैक्सिमम उसको लास्ट, क्योंकि दोनों गेम्स में 200 प्लस हुआ है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में स्टार्ट तो उसी तरह ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि श्रीलंका को बैट आउट करें मैच से, ऐसा टोटल पोस्ट कर दें। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। Yeah, for Sri Lanka, they need to regroup. They have injuries on their side. Their spinners got trashed last time. Their captain was just telling us that. So for them, it is a pressure game. It is do or die for Sri Lanka. Yeah. Only 2 points, third game. And it's an exciting team, Sri Lanka. We have seen the way they played during Asia Cup. They started off, थोड़ी प्रकाश पड़ी, उसके बाद in the end they won the cup and became the Asian champions in T20 format. And कुछ नहीं पता, 1-2 प्लेयर चल जाए, इनका स्कोर हो जाए, इनके स्पिनर मिडिल में चल जाए। अब डिपेंड करता है पहले 6 ओवरों में ये कितना करते हैं, बिकॉज मिडिल में ये शायद उनके बैट्समैन को खूब फंसा लें, शायद हो सकता है। वकार, take us through the playing 11s coming up on the screen now. This is the New Zealand playing 11. लेकिन एक चेंज की है, हमने देखा है कॉनवे जितना अच्छा खेल रहा है, एलन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, द विलियमसन मे बी लुकिंग फॉर हिज फॉर्म, इज़ नॉट रियली देयर येट. Phillips, another very destructive batsman. Mitchell comes in, he bowls a little seam up also, and the bowling stays the same. So they are very, very fine side. They're going to really trouble Sri Lanka, I feel. Yes, and Misbah, take us through the Sri Lankan playing 11 coming up on your screens now. या निशांका, मेंडिस, ऑब्वियसली मेंडिस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वही एक फॉर्म में है, रन्स कर रहा है, श्रीलंका ने पिछले मैच में थोड़े रन्स किए हैं। लुकिंग श्रीलंका विल बी लुकिंग कि बनुका राजपक्ष जो है वो रन्स करें। आई थिंक एक फोर्स चेंज जो फास्ट बॉलर उनके बिनोरा इंजर्ड हुआ, राजिता उसकी जगह आए हैं, तो लेट्स सी हाउ दे जस्ट, बट आई थिंक इट विल बी की फॉर श्रीलंका, स्पेशली अगर उन्होंने प्रेशर डालना न्यूजीलैंड पे, दोनों उनके ओपनर्स को आउट करना, अब फिर कुछ एक जिसको बैलेंस में गेम जाएगी अगर अर्ली 2 विकेट्स वो ले लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका. All right, there you have it. New Zealand have won the toss and have elected to bat first. And on that note, we are going to take a break on the Pavilion. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूँ फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतने लोग क्यों हंस रहे हैं, तो ये मुझे एक मैसेज आया मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का, क्या और उन्होंने डिमांड की है, दोस्त का नाम भी बताएं ना प्लीज, बता दें। खैर, डिमांड नहीं बता, नहीं डिमांड नहीं मैं बता सकता, वो ऑफ एयर बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ कहने को कहा है कि वो, लेकिन वो हम ऑफ एयर कोशिश करके हम उनको वापस करेंगे मैसेज। मेरे बड़े अजीज दोस्त मुश्ताक अहमद साहब जो वेले बैठे हुए घर पे, तो उन्होंने कुछ कहा। That's hilarious. Mushi bhai. The great leg spinner Mushtaq Ahmed, ladies and gentlemen, he's got a great sense of humor, and this entire gang actually had a great sense of humor. Totally, all of them. अगर मुशी सुन रहा है तो मुशी को बता दो अथरू आगे नहीं मुशी। हंस के आई से मुशी knows and we know what it means. ओ पिद्दी चुनो। क्या करते
Okay. And with that, it's time for expert predictions brought to you by Olivia. It's time for expert predictions. Let's take the... Okay, Misbah. बड़ी मुश्किल है Sorry. हाँ जी, बहुत मुश्किल है, बताएं. जायचा निकाल रहा हूँ जायचा निकाल रहे हैं हम. न्यूजीलैंड भाई इधर तोता भी कोई नहीं. अच्छा जी. जापानी तोता जो है वही चला. Wasim? I'll go for New Zealand. They won the toss. They're looking good. And yeah. All right, cool. Waqar? I'll go Sri Lanka. Sri Lanka. All right. वही जैसे हमने ग्रे जैकेट पहनी है, तूने बेज पहनी है. Has to be different, isn't it? Chalo, you know, Shoaib Malik isn't here, so I'll do this for him as well. I will also write Sri Lanka, which I know is very unlikely, but because नहीं, I Waqar think वो said श्रीलंका ही कहेगा. मुझे भी ऐसा लग रहा है. ऐसे ही लग रहा है? हाँ, वो हमेशा उल्टा पंगा लेते हैं. उल्टा पंगा लेते हैं. चलें जनाब. And there you have it, expert predictions. The legend is out of control. Here इनकी हंसी नहीं रुक रही वसीम की. ये कह रहे हैं, ये बेसिकली इनकी हंसी कह रही है कि जो उसने डिमांड की है वो ऑन एयर कहो. सुना देना आप. वो नहीं, बड़ा नहीं, अच्छा था वो. आपने बड़ा रिदम के साथ रिदम के साथ बोला था. नहीं, वो तीसरी दफा जब वो कहेगा ना तो वो अच्छा नहीं रहेगा. एक दफा तो I'm not saying नेशनल it. टीवी नो. I'm gonna mess it up anyway. no, why? Make him do it. He No, did no, it no, right. no. I won't take that chance. All right, we won't take that chance. All right. Acha ji, New Zealand highest win-loss ratio in T20 in this year is New Zealand. They played some tremendous cricket. ये आपके सामने 17 मैचेस खेले, 13 जीते, 3 हारे, 1 का नो रिजल्ट था. और इस लिस्ट में श्रीलंका कहीं भी नहीं है. इंडिया है दूसरे नंबर पे, साउथ अफ्रीका तीसरे पे, जिम्बाब्वे चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया 5वें पे. जिम्बाब्वे चौथे पे. Pakistan must have played quite a few T20s this year. Yeah, but on that win rate, they're not there. On that Okay. ratio list, they're not there. That's unfortunate. I think श्रीलंका को अगर आज जीतना है, you know the stats says clearly कि New Zealand is a very strong team और बहुत उनके all bases are covered. I think उनको लिए ज़रूरी है श्रीलंका के लिए कि उनके जो राजापक्षे स्पेशली है ना, उनका फायर करना बड़ा ज़रूरी है. और उनका कप्तान इज़ बीन टोटली ऑफ कलर. सो आई थिंक ये दो जो बंदे हैं इनको नंबर 5 नंबर 6 पे दे हैव टू कम गुड टू चैलेंज दिस टीम. इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अगर आएंगी और बड़ी परफॉर्मेंसेस आएंगी इंडिविजुअल, तभी जाके चैलेंज कर सकेंगे ये न्यूजीलैंड को. Yeah, and I think the bowling will have to really deliver for Sri Lanka. क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को ये छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, इस बार इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर श्रीलंका. मेरे ख्याल में वही चीज़ इनको जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कि इनकी मेजर परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ये दो बॉलर्स पे, अपने स्पिनर्स पे. और फास्ट बॉलिंग से उस तरह के कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे हैं. वो विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं, इकोनॉमी भी, इंजरीज भी. तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जब आप खेलते हैं और आके आपकी फास्ट बॉलिंग अगर स्ट्रगल कर रही है और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, तो फिर होता है क्या है कि आपका जो मेन बॉलर है स्पिनर, वो फिर उसको चांस लेना पड़ता है ज़्यादा. चांस लेने में जैसे वकार भाई ने पहले कहा है, विकेट्स उसको ही लेनी है. एशियन कंडीशंस में तो वो आपका अटैकिंग बॉलर है, वहाँ पे विकेट्स लेता है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आपका स्पिनर विकेट्स लेने जाता है तो यहाँ आपको मार पड़ सकती है, जो कि पिछले मैच में हुई. तो आई थिंक थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ पे, अगर टफ टाइम देना है न्यूजीलैंड को. वो उसी तरह होगा कि अगर अर्ली ऑन अगर स्पेशली स्पिन, आई थिंक आई एम विद यू ऑन दैट कि जी ये शुरू तीक्ष्णा से ही करेंगे. पहला ओवर अर्ली, हाँ, आई थिंक दे हैव टू. आई थिंक द पेस को तो देख लिया ना कि वो फिन एलन क्या करता है. ही जस्ट कम्स हार्ड एंड अगर वो मतलब रिस्क है, इट्स अ बिग रिस्क. दे कैन गेट हिम आउट. Sometimes if I'm in Sri Lanka situation, I will take a risk. I will take a risk कि चलो ठीक है यार, नया बॉल मैं कराता हूँ अपना पहला फास्ट बॉलर से, दूसरा देखते हैं टिक्शाना से. बट या रिस्क तो लेना पड़ेगा, सेफ तो हो नहीं सकते इस फॉर्मेट में. मोमेंटम का रोल है ना. मसला ये है कि अगर मोमेंटम अर्ली ऑन पहले ओवर में अगर वो जिस तरह उसने स्टार्क को किया, अगर उस तरह कर दिया तो देन वो पकड़े नहीं जाएंगे फिर ना. अभी तो वो राजिता मोमेंटम खेल में नहीं रहा है. उनको घुसने देना. लेकिन मैं इस राजिता खेल रहे हैं और वो स्विंग बॉलर हैं बेसिकली. पेस इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़े लंबे हैं और अच्छा स्विंग होता है. स्पेशली राइट हैंडर को आउट स्विंग होगा, लेफ्ट हैंडर को अंदर. तो एक तरफ से आप ठीक ना और एक तरफ से मैं जल्दी से एक बता दूं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी मैच खेला था 204. राइसी ये प्लेड अ वेरी बिग
सेंचुरी दैट ही बट उसमें आखिरी 4 ओवरों में बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त तरीके से रेन इन किया था, वरना तो 230 240 एक वक्त पे लग रहा था. दिस इज द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट. अगर आप ऊपर से रन्स हो भी जाते हैं, सो यू कांट जस्ट सिट बैक एंड से गो वी जस्ट प्रॉब्लम. Alright, with that, gentlemen, thank you very much. Wasim is still giggling and still not stopping his laughter, which has been extremely distracting for me throughout this session. Right, program. Throughout this program. Thank you, Waqar, Misbah, Wasim. We will see you on the other side of the game. It is New Zealand versus Sri Lanka in Sydney. New Zealand have won the toss and have elected to bat. So good luck to both the teams, and we will see you at the end of the game.